नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषु पञ्च नमोकारो सब्बपावपणाशरो मङ्गलाणं च सब्बेषु परमं भूरि मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्याजैनोदरभोष्णु मंगलम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्ता प्राज्ञवरो वक्ता गच्छाधीश सुसंयमी शूरीश्वरो गुणाब्देशासङ्गबुद्ध्यै सरोद्यमी शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् भग्नानातिमिरान्धानां दानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sit down. Close your eyes and join your hands and repeat whatever I say. Prayer. Close your eyes. Om Namo Jinanam. Om Namo Jinanam. Saranam. Mangalanam. Mangalanam. Loguttamanam. Ram Rim Rum Rem Ram Raha Asiya Usha Trilokya Lalam Bhutaya Shudro Padrava Samanaya Arhate Namah Swaha Om Aim Namah. 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 Om Rim Namo Narasa. Om Rim Namo Narasya. Om Rim Namo Narasa. Om Rim Namo Narasa. Om Rim Namo Narasa. Om Rim Namo Narasa. Now open your eyes. What do you say? Om Rim Namo Narasya? No Sya, no Narasa. Only double Sa. Ya nahi hai. Om Rim Namo Narasa. Have you read the book which was given to you? The character of Mahavir Swami Bhagavan? How many of you have read that book? When will you read others? हाँ, आपको किताब मिल गई है, सभी को पढ़नी है. चलो आप नीचे जिनको जवाब देना हो, raise your finger. What was the original name of Mahavir Swami Bhagavan? What was the original name of Mahavir Swami Bhagavan? The last word. Very good. Vardhaman Swami. Vardhaman Swami. What was the reason behind this name? Why his parents gave him this name? You know? Because you are very Get up and raise your handkerchief for Mupatti. And took also Charvada Dandi in your hand. Charvada Dandi. Put here. Dandi. इसको ऐसे रखो बगल में ऐसे. ये भाग आगे लेफ्ट. हाँ हाँ. Because he was very brave. Because he was very brave.
Nose. You are Aryan. Aryan. Arya. Ah, You know Aryan? that is Aryan. You are Arav. Arav and Aryan. Take Aryan. Arav is elder. No. Same. He is elder. One. Give. Reply. Vardhaman means brave and Not brave. Vardhaman is not brave. Vardhaman means Kishan. Kishan and Vian. so when Vardhaman was born, in the whole kingdom everybody was very happy and all the crops were growing more and also then Increasing. Every Yeah, good things were increasing. So then they named him. भगवान का जब जन्म हुआ तब अथवा भगवान गर्भ में पधारे तब से लेकर के प्रतिदिन उनके जो माता पिता थे ना उनके महल में सब अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ती जा रही थी इंक्रीजिंग वेल्थ एटसेट्रा सब बढ़ रहा था तो वर्धमान माने बढ़ता हुआ व्हाट इज द मीनिंग इंक्रीजिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्धमान इंक्रीजिंग एवरी गुड थिंग्स वेर increasing in the house of his father and mother. So, the parents gave him name Vardhaman Kumar. Then, who gave other name Mahavir Swami and why? Only 3 fingers are raising. You come sit here. Come here. तो जरा समय से आ जाओ जल्दी आ जाओ आगे आ जाओ यहाँ हाँ come on और big his mother's name was Trishla Devi. What was his father's name? You don't know? Have you not read that book? वो आपको पढ़ने के लिए नहीं गई, ऐसे रखने के लिए नहीं। तुम सभी को पढ़ना है वह किताब। बस यही जवाब देते हैं, बाकी बीच में वाले कोई नहीं देंगे जवाब। What was his father's name? You. Yes. Siddharth Maharaja. What was name? Siddharth Maharaja. Speak everybody loudly. Siddharth Maharaja. And mother's name? Krishna Devi. देखो एक इसका आवाज कितना लाउड है। हाँ सब तुम जोर से बोलो, सभी बोलो। मदर्स नेम फादर्स नेम सिद्धार्थ महाराजा एंड ओरिजिनल नेम Vardhaman Swami. Then who gave the other name Mahavir Swami and why? Vishal will speak. You sit down, you speak. Loudly, speak loudly. हाँ इंग्लिश में बोलो, मैं तो हिंदी में। देव ने नाम दिया। हाँ वर्धमान महावीर स्वामी नाम किसने दिया उनको? देवों ने। हाँ वाई? क्योंकि देव ने उनकी परीक्षा ली थी और उसमें महावीर स्वामी पास हुआ। क्या परीक्षा ली थी? वो पहले सर्प बन के आए और फिर सब उनके महावीर स्वामी और उनके फ्रेंड्स खेल रहे थे। तो तभी महावीर स्वामी उस वक्त वर्धमान कुमार उनके फ्रेंड्स खेल रहे थे। They were playing. He was playing with his friends. And what happened? They came to take examination. Then तो उन्होंने सर्प का रूप लिया। he took the रूप of snake, cobra, king cobra. और फिर उनके दोस्तों को बचाने के लिए वर्धमान कुमार पहले दोस्त तो सब डर करके भागने लगे और वर्धमान कुमार ने बिना डरे हुए उसको ऐसे आराम से उठा करके ऐसे दूर रख लिया। एक तो ये प्रसंग है। दूसरा परीक्षा का सिट डाउन। दूसरी परीक्षा किस प्रकार से ली? यू डोंट नो मिया? I didn't read the whole book. You have not read the complete book. You have read partially. हाँ चलो
बोलो। Can you will you speak in Hindi? Can you speak? Try to speak in Hindi. वो देव एक Hmm. वो देव एक रैप हाँ 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 पहला वो गेम में हार गया हाँ, पहला वो जो देव था वो जानबूझ करके गेम में हार गया। और नागर स्वामी और वर्धमान स्वामी जीत गया। तो वर्धमान स्वामी उसका उसका वो शर्त क्या थी कि जो हार जाएगा उसके कंधे पर जो जीत जाएगा उसको बिठा जाएगा और वो हाँ फिर वो जाता था तो वो बड़ा हो गया और वो राक्षस हो गया और हाँ। फिर वर्धमान स्वामी ने हाँ उसका हेड पर ऐसा किया प्रहार किया, मुट्ठी का प्रहार किया और वो एकदम वो फिर से नीचे नीचे देव छोटा का फॉर्म छोटा हो में गया। गया। हाँ और फिर वो हाँ हाँ, ओके, समझ गए। अभी खेल रहे थे, देवता हो आया बच्चे का रूप लेकर के और जानबूझ करके वो खेल में हार गया और शर्त के मुताबिक वो देवता जो था बच्चे के रूप में उसने अपने कंधों पर वर्धमान कुमार को बिठाया और फिर एकदम राक्षस से बड़ा विशाल रूप धारण किया। तो छोटा बच्चा तो घबरा जाता है, हाँ डर जाता है, लेकिन ये वर्धमान कुमार घबराए नहीं। उन्होंने एक ऐसी मुट्ठी के करके ऐसा लगाया जो देवता भी बेचारा एकदम नीचे हो गया। इस प्रकार से वो वी वॉज वेरी वेरी ब्रेव। तो ब्रेव जो होता है उसको संस्कृत में वीर बोलते हैं। हिज नेम इज वीर ऑल्सो, वीर और महावीर। दुनिया में किसी को जीतता हो तो वीर कहलाता है, लेकिन अपने अंतर शत्रु एंगर, ईगो, चीटिंग, ग्रीड, जेलसी एक्सेट्रा इन सबको जीत लिया, इसलिए वो महावीर कहलाए। अथवा दीक्षा लेने के बाद भी उनको बहुत बहुत उपसर्ग हुए। उपसर्ग माने ये सब ऑब्स्टैकल्स, उसमें भी वो एकदम शांत रहे, जरा भी एंगर नहीं किया किसी के ऊपर भी, इसीलिए भी वो महावीर कहलाए। ठीक है। What was his total age of Mahavir Swami? How many years he lived in this on this earth? Give reply. Answer. Give answer. 22 How total? Only 22 years. टोटल एज कितनी थी महावीर स्वामी भगवान की? कितना साल वो जिंदा रहे? ओनली ये वही बच्चे जो आंख फिगर ऊँची करते हैं, बोलो 32 ओनली। Behind? No. Big. No. 78 78? No. 72 72. How many years? 72 हाँ, 72 साल की उम्र की टोटल आयु, टोटल उम्र थी 72 साल की। भगवान हमें प्रत्येक तीर्थंकर का कोई ना कोई चिन्ह होता है, निशान। व्हाट वाज द लंचन जिसको बोलते हैं, व्हाट वाज द लंचन ऑफ महावीर स्वामी, लॉर्ड महावीर स्वामी? बोलो। नो, नो स्नेक। हाँ, शेर, लायन, लायन LION। नो। हाँ, हाँ, ask। तो महावीर भगवान वो चौथा आरा में वो था ना, हाँ, तो फिर उसका आयु सिर्फ 72 साल का क्यों था? थोड़ा लॉन्ग। हाँ, लेकिन वो चौथे आरे के एंड में, करीब करीब एंड में हुए। शुरुआत में बढ़ा था आयुष्य, धीरे 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 कम होता गया। अभी भी देखो 5-12 चल रहा है। हाँ, इसकी जैसे आयु 100 साल की मानी जाती है, लेकिन 100 साल को तो कोई जिंदा रहता है, बाकी तो 70, 80, 85 या 90। और वो तो हाँ, तो उसमें अलग अलग आयु की होती है, सभी की एक समान आयु नहीं होती है। तो इसीलिए महावीर स्वामी की 72 साल की आयु हुई, क्योंकि वो चौथे आरे के करीब करीब एंड में हुए थे। हाँ,
और तो कोई प्रसंग महावीर स्वामी भगवान के जीवन में बहुत सारे प्रसंग हैं. डू यू नो, हैव यू रीड द इवेंट ऑफ चंद्र? हाँ, वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हैं? देखो, पहले से पानी वगैरह पी के आना, बीच में से किसी को उठना नहीं है ना, बीच में से ऐसे ऐसे जाना नहीं है. कोई जरूरी काम हो तो मैंने बोले ना, क्या परमिशन, पहले से पानी पी के आओ, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिंक वाटर करके आओ, फिर यहाँ बीच में से किसी को उठना, 1 घंटा तो बैठना है. क्यों इतने लेट आते हैं बच्चे लोग? कम बिकम क्लास थे. ठीक, चलो. तो भगवान महावीर स्वामी के जीवन में अनेक इवेंट्स प्रसंग हुए थे. उसमें से कोई प्रसंग बोलोगे? बोलो. हाँ, तो बोलो, इनको खड़े होकर के बोलो. हाथ में रुमाल है, टीचर की अमुपति रखो. है कुछ भूल गया तो क्या है? किस्सा तो तुम्हारा बड़ा दिख रहा है, जेब तो है. हाँ, तो रुमाल लो. हाँ, उसकी पूरा कहानी बताओ, क्या है? नहीं मालूम? हाँ हाँ, बोल. उसकी कहानी पता है. हाँ, उसकी कहानी पता है. कहानी पता है तुमको? हाँ, बोलो खड़े होकर के. वो जो चंद्रकोशेश्वर साहब का है, उसने महावीर स्वामी ध्यान में थे, तो उसने उसको उनके टो पर डसा था, तो उनमें से खून नहीं निकला पर दूध निकला था. दूध निकला था. अच्छा, फिर तो फिर बोलो, निशान बोलो. महावीर सुनो, ध्यान से सुनो साहब, लिसन केयरफुली. स्वामी किधर मेडिटेशन के लिए या गए. इधर आओ पीछे. स्पीक लाउडली so that everybody can listen you. मैं इंग्लिश में बोलूं. हाँ, इंग्लिश में बोलो, जोर से बोलना. Mahavir Swami had gone to meditate in a ruined temple In a forest. in a forest. हाँ. In a forest, and then there lived a snake called Chandakoshik. He was very poisonous. Even if he just hisses at you, you would die. So then Chandakoshik was going. Mahavir Swami was going, and then Chandakoshik saw him, and then he hissed at him, but nothing happened. Then he became very angry, and he went close and he bit him, but milk came out. Listen everybody, look here. Blood didn't come out. Milk came out. And मैं That Chandakoshik was not actually milk, it was blood only, लेकिन it was color of the blood was white. Every Tirthankar's body's blood's color is always white, not red. जनरली खून का कलर लाल होता है, लेकिन प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के खून, शरीर का जो खून होता है ना, उसका शरीर कैसा होता है? हमेशा वाइट होता है, दूध जैसा. दूध नहीं निकला था खून, लेकिन उसका कलर दूध जैसा वाइट था. और मैं चंद्रकोशक का पहला जन्म बोलूं. हाँ, अच्छी बात है. देखो, इसके चंद्र कौशिक नाथ का अगला जन्म भी आता है, लेकिन मैं जरा बोलता हूँ, अभी तुम बैठो, सुनो ध्यान से बरोबर. अगर दूसरा माइक होता है ना, अच्छा, तो जरा तुम बोलते सब सुन सकते. हाँ, what are you speaking? आज किससे है? ओह, ही नोज 5 इवेंट्स ऑफ भगवान महावीर स्वामी. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन. सुनो, देखो, अभी ध्यान से सुनो. चंद्र कौशिक नाथ की कहानी, उसकी पूर्व जन्म की कहानी कहता हूँ. अगले जन्म में केवल 2 भाव पहले वो चंद्र कौशिक नाथ का जीव कौन था? एक जैन साधु थे. कौन थे? हाँ, वो चंद्र कौशिक कोबरा, उसका जीव अगले तीसरे भाव में एक जैन साधु महाराज थे, बड़े तपस्वी थे. एक बार क्या हुआ, एक छोटे साधु महाराज ऐसे छोटे, और वो उनके साथ वो दोनों गोचरी लेने के लिए वो गए थे, अथवा समझो और भी ऐसे कोई कार्य से बाहर गए थे. और जब लौट रहे थे ना, बारिश के दिन थे, एक छोटी सी
मेंढक को क्या बोलते हैं? Frog. फ्रॉग. हाँ, very little frog came in beneath his leg. उसके पाँव के नीचे एक छोटी सी मेंढकी दब करके मर गई बेचारी. ऐसे पाँव रखने गए ना, तब तो वहाँ पर थी नहीं, लेकिन पीछे साइड में से ऐसे एकदम अचानक आ गई, पाँव के नीचे दब करके मर गई. तो वो जो छोटे महाराज साहब थे ना, उन्होंने देखा तो उन्होंने वो बड़े महाराज को कहा, अरे महाराज साहब, वो बेचारी ये मेंढकी आपके पाँव के नीचे आकर के मर गई है, आपको बहुत पाप लगा. तो महाराज साहब ने क्या कहा, बड़े महाराज माने वो चंद्रकोशी का जीव, अगले तीसरे भाव में उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे पाँव के नीचे नहीं मरी है, मैं तो बराबर देख के पाँव रखा है मैंने. यही तो बारिश होती है ना, उसमें तो कितने मेंढक हो जाते हैं, और कितने लोगों के आने जाने से किसी के पाँव के नीचे लग गई होगी, मर गई होगी. मेरे पाँव से मैंने नहीं मारी, मेरे पाँव से नहीं मरी. लेकिन उसने कहा, नहीं, मैंने बराबर देखा, वो आई, पीछे से आई साइड में से, और आपके पाँव के नीचे आकर के मर गई. अरे नहीं मरी, मेरे पाँव से नहीं मरी. फिर जब वो उपास्य में पहुँचे ना गुरु महाराज के पास, उस वक्त हम लोग एरिया वही करते हैं, रास्ते में कोई भी छोटा बड़ा जीव अनजान करने में कोई मर गया हो या किसी को तकलीफ हुई हो ना, तो उसके लिए उसकी क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मेडिटेशन करते हैं कि लोग सका. तो उस वक्त फिर वो बाल मुनि ने उनको रिमेंबर कराया, तो आपको अभी बराबर भाव से अच्छा कौशल कर मेडिटेशन करना, और वो जो मेंढकी है उससे क्षमा प्रार्थना कर लेना. देखो अभी किसी को उठना नहीं है बीच में से, अभी से शिविर में आए हो, उससे पहले ही जो कुछ करना हो, पानी पीना हो या लघु नीति करनी हो, सब कर लेने का. बीच में से ऐसे किसी को बिना परमिशन से जाना नहीं चाहिए. हाँ, सुन लो बराबर. तो फिर उस बाल मुनि ने याद करवाया, महाराज साहब, वो आपके पाँव नीचे लग गई ना मेंढकी, उसका बराबर उसके यू बैग योर पार्डन, इसके क्षमा याचना करना, माफ़ी मांग लेना, तो आपको अपनी जो पाप लगेगा. फिर वो महाराज साहब ने कहा, अरे मैं कहता हूँ नहीं मराए थे मेरे पाँव से, क्यों ऐसे बोलते बार बार? अरे मैंने देखा, वो बाल मुनि बोल रहा है. फिर शाम को प्रतिक्रमण का टाइम हुआ, तो उस प्रतिक्रमण माने जो भी दिन भर में पाप हुए हों, उससे प्रति माने पीछे, क्रमण माने हटना, पीछे हटना, माने उसकी क्षमा याचना करना, मिच्छामि दुक्कडम बोलना वगैरह. तो उस वक्त फिर वो छोटे महाराज ने उनको याद दिलाया, महाराज साहब अब तो प्रतिक्रमण भाव से करना, क्षमा याचना करना मेंढकी के जीव से बेचारे से. फिर उनको जरा गुस्सा आ गया, वो बार बार जो छोटा साधु बोलता था ना, तो गुस्सा आ गया, और उनको थोड़ा मेथी पाक चखाने के लिए ऐसे लेकर के जरा उसके पीछे दौड़े. उस जमाने में शाम का समय था, और ऐसे खंभे बहुत, इधर तो अभी कम है, 3 है, लेकिन उस जमाने में बीच बीच में मकान में खंभे बहुत होते थे. तो उसके पीछे वो छिप गया वो बाल मुनि, और उसको पीछे दौड़ते दौड़ते वो जो बड़े मारे थे ना, उनका सर टकराया. वो बराबर प्रकाश नहीं था, अंधेरा थोड़ा था, तो सिर टकराया खंभे में. फिर वही उनकी आयु समाप्त हो गई, और वो मर करके एक बार तो ज्योतिष देवलोक हुए थे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा जो आकाश में है ना, वो भी देव विमान है, उसमें भी जो देव रहते हैं उनको ज्योतिषी देव बोलते हैं. लेकिन उसके बाद फिर तीसरे जन्म में वो एक बड़ा आश्रम था, उसके वो हेड बने, मालिक बने, और उस आश्रम के अंदर माने तापस बने, जो तप करते हैं, और सन्यासी जैसे बने. और उसका जो वो बड़ा गार्डन था, उसमें बड़े फल फूल थे, तो कोई भी वो फल फूल को तोड़ने के लिए, खुशी ले, कोई भी फल फूल तोड़ने के लिए वहाँ पर आता, तो उसके ऊपर बड़ा गुस्सा होकर के उसको भगाने के लिए, मारने के लिए दौड़ते, क्योंकि अगले जन्म में क्रोध करने का वो पड़ गया था ना संस्कार. बाल मुनि के पीछे दौड़े, उनको मारना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पनिशमेंट करना था. तो वो जो गुस्से करने का, क्रोध करने का, एंग्री होने का संस्कार पड़ गया, उसके कारण से उसका क्रोध वो बढ़ता गया. फिर तो पूरे बड़ा गार्डन था, उसमें आश्रम, जिसको आश्रम बोलते हैं, उसमें कोई भी आता उसको मारने के लिए दौड़ते. तो एक दिन क्या हुआ, छुट्टी के दिन थे, और सब तुम्हारे जैसे या इससे बड़े, तुम्हारे से बड़े ऐसे जो बच्चे थे बड़े, वो सब इकट्ठे हुए, और चलो उसको जरा गुस्से कराएं. इसलिए वो जानबूझ करके
वो पीछे के रास्ते से गार्डन में से घुसे और इधर दूर से वो देख लिया ये जो तापस था, देख लिया तो उसको उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए दौड़ते हैं। हाथ में उनके साथ में एक वेपन था, वेपन है एक्स माने कुल्हाड़ी एक्स कुल्हाड़ी, वो लेकर के दौड़ते हैं उनके पीछे। दौड़ते दौड़ते गुस्से में आदमी होता है ना, जैसे एंगर में, तो वो बराबर देख नहीं पाता पूरा। तो रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया, खड्डा, और गड्ढे के अंदर वो अचानक उनका पाँव अंदर चला गया, वो गिर गए खड्डे में, और हाथ में जो ऐसे कुल्हाड़ी थी ना वो उसी के अपने ही पेट में लग गई और वो वहीं पर मर गए। इसलिए कभी भी एंग्री नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा समता रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऑलवेज बी काम, नेवर बिकम एंग्री। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, वो मर करके फिर ये बड़ा जंगल था, विशाल फॉरेस्ट, वेरी बिग फॉरेस्ट, उसके अंदर किंग कोबरा, और वो भी दृष्टि विष माने, दृष्टि माने नजर, आँख, उसमें से ऐसे सूर्य के सामने ऐसे फिर देखता, फिर ऐसे दिखता है ना, अग्नि की ज्वाला, फायर निकलती है उनकी आँख में से, और सामने जो कोई आता है सबको वो जला देता है। ऐसे हजारों मनुष्यों को, पशुओं को, पंछियों को, पेड़ पौधों को उसने जला करके मार दिया था। तो पूरा फॉरेस्ट एकदम सुनसान हो गया था, उस जंगल में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है। लेकिन वो जो साधु जीवन जिया था ना, उसका जो पुण्य था, उस पुण्य के प्रभाव से भगवान महावीर स्वामी उस फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे। ये भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, अभी वो साधना भी कर रहे थे, फिर भी बौद्धिक ज्ञान से उनको पता चल जाता है, तो वो उस दिशा में जाने लगे। तो रास्ते में जो ग्वालियर वगैरह लोग थे ना, वो लोग रोकने लगे महावीर स्वामी को, अरे आप उधर मत जाओ, वो बड़ा जहरीला वो सांप है चंद्रकौशिक, आपको मार देगा, हाँ प्लीज डोंट गो देयर। लेकिन भगवान ने किसी का कुछ नहीं सुना, वो तो शांत रह करके आगे आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और जैसे उस फॉरेस्ट के नज़दीक में पहुँचे ना, उसके दूर से वो चंद्रकौशिक नाग ने उनको देख लिया। अरे कोई अभी आदमी हिम्मत नहीं करता है इस जंगल में आने की, और ये आदमी तो बिल्कुल निर्भय होकर के वो चला रहा है, क्या बात है। तो वो आगे बढ़ता, उसका ईगो हर्ट हुआ, मैं यहाँ किंग, मेरा राज्य है, किंगडम ऑफ माइन, हाउ कैन एनीबडी एंटर इन दिस फॉरेस्ट इन माई किंगडम। तो वो जाता है और ऐसे फन चढ़ाता है भगवान को डराने के लिए, फिर भी भगवान डरते नहीं हैं। फिर वो नजदीक में जाकर भगवान से खड़े मेडिटेशन में खड़ा रह गए ऐसे, तो वो भगवान के पाँव के ऊपर, पाँव का अंगूठा क्या बोले टो, उसके ऊपर वो डंक लगाता है। डंक को क्या बोलेंगे, डंक मारता है, हैं? अपने वो फ्रेंड, अपनी फना नहीं, डंक लगाना किसी को, जैसे मच्छर भी काटता है, बाइट, हाँ हाँ, ही ट्राई टू बाइट ऑन हिज लेग, ऑन हिज टो। तो उस वक्त क्या निकला, दूध नहीं निकला, मिल्क नहीं था, वो मिल्क जैसे कलर वाला खून ही था। क्यों, देखो जिससे बच्चे का जन्म होता है तो माँ के शरीर में भी दूध आ जाता है ना, तो क्योंकि उसके बच्चे के ऊपर प्रेम होता है। तो भगवान को जगत के सभी जीवों के प्रति प्यार होता है, प्रेम होता है, हाँ, इसीलिए इसके उनका शरीर का खून भी वाइट हो जाता है। उसका जो मांस को क्या बोलेंगे, फ्लैश, हाँ, फ्लैश भी वो वाइट कलर का होता है, उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती है, सुगंधित होता है। फूल की, फ्लावर की सुगंध कैसी होती है, फ्रेग्रेंस, ऐसा उनका खून, उनका मांस, उनका ये रेस्पिरेशन, श्वासोच्छ्वास, सब में कमल के फूल जैसी फ्रेग्रेंस माने सुगंध होती है। तो डंक लगाया, पहले तो फूल किया तो भी डरे नहीं, फिर डंक लगाया और ऐसे पीछे हट गया। उसको हुआ अभी में गिर जाएंगे, डंक जहरीला बड़ा होता है, फिर भी थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन तीर्थंकर थे ना, उनका अतिशय होता है, उनका पुण्य ऐसा होता है, दूसरा कोई आदमी तो मर ही जाए तुरंत, ऐसा वो जहरीला था। लेकिन तीर्थंकर की आत्मा, वो जब तक उसकी आयु नेचुरली समाप्त नहीं होती है, तब तक
हाँ तब तक वो, हाँ भले, तब तक वो मरते नहीं है। वो दूध निकला, चकित हो गया, अरे ये कैसा आदमी है, डरता भी नहीं है और मेरे को दूध देता है, मेरे खून था लेकिन सब दूध पीता है और एकदम शांत खड़ा है। वो विचार में पड़ गया, कोई अलग आदमी है। तब भगवान के मुंह से क्या वाक्य निकला, बोलो, बुज्ज बुज्ज, बोलो क्या, पूरा आगे एक शब्द है, बुज्ज बुज्ज चंडकोशीय। उसका नाम चंड कौशिक था। चंड माने प्रसन्न, उग्र, बहुत गुस्से वाला, इसलिए चंड, और कौशिक उसका गोत्र था, अगले जन्म का, इसलिए वो चंड कौशिक के नाम से प्रख्यात हो गया था। तो भगवान ने क्या कहा कि एक सेंटेंस का उनको, बुज्ज बुज्ज चंडकोशीय, अर्थात हे चंड कौशिक, तू बोध को पा, ज्ञान को पा, सूझना समझ, कहीं का समझ तू कहीं का समझ, एम कहे करुणा आनी, महाभयंकर ए मार्ग मा विचरे महावीर स्वामी। पहले आगे शुरुआत से बोले तो जा, वो वाले लोग क्या बोलते हैं, जासो मां प्रभु पंथ विकट छे, मैंने रास्ता बहुत भयंकर है, ઝેર ભર્યો એક નાગ નિકટ છે, ઓ ઝરીલા સાપ है, हाथ जोड़ीने विनवे वीरने, लोक बधा भय पामी, महाभयंकर ए मार्ग मा विचरे महावीर स्वामी। लोग हाथ जोड़ के कहते हैं आप मत जाओ, वहाँ ઝરીला साप है। विष, उसके शुरुआत में क्या है, नहीं, विषधरी, विष माने जहर, विषधरी ने विषधर सूत, विषधर माने साप, चंडकोशियो नाने, महाभयंकर हे मार्ग मा विचरे महावीर स्वामी। फिर आगे बीच में एक पंक्ति छूटती है, फिर ऐसा आता आगे, दूध वयोजा प्रभु ने चरणे, चंडकोशियो आर्यो शरणे, कईक समझ तू कईक समझ, एम कहे करुणानी। बड़े प्यार से, बड़े करुणा से उनको बोलते हैं, अरे तू कुछ तो समझ, बुझ बुझ, बुझ माने बोध पा, ज्ञान को पा, कुछ तो समझ। अगले जन्म में तुमने क्रोध किया, इसी के कारण तो तुमको ऐसा अवतार मिला है, और अभी यहाँ क्रोध से जीवों को मारता रहेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट में एक ही वाक्य कहा, बुज्ज बुज्ज चंड, और भगवान की वाणी का इतना प्रभाव होता है कि सांप भी अपनी भाषा में वो समझ जाता है। वो भगवान क्या कहते हैं, एकदम उसको अपना अगला जन्म याद आ गया, ओ मैं साधु था और मैंने उमाल मुनि के प्रति गुस्सा किया, उनको पनिशमेंट करने के लिए दौड़ा, सिर टकराया, मर गया। फिर आगे एक बॉम्बे में वो आश्रम में बना, वहाँ भी सबको मारने के लिए दौड़ता था, और इधर भी कितने जीवों को मैंने जला करके भस्म कर दिया, कितने मैंने पाप कर दिए, गुस्से के कारण मैं साधु जीवन पर उसको हार गया। अरे रे धिक्कार है मुझे, ऐसा उसको पश्चाताप होता है, उसको कहते हैं दुष्कृत गढ़ा। अभी व्याख्यान का विषय भी सब्जा का यही चलता है, दुष्कृत माने पाप, सिन, जो भी सिन हमारे जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक, तो अगले जन्मों में भी हुई है, तो सबकी क्षमा याचना करते हैं भगवान के सामने। इसलिए भगवान को यहाँ पधराया है, जिससे भगवान उनके आगे क्षमा याचना करते हैं कि भगवान ऐसा 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 हमने किया हो, अगले जन्मों में भी या इस जन्म में भी। अगले जन्म में कई बार हम शेर बने, भालू बने, टाइगर बने, कितने जीवों को मारा होगा। कई बार वो क्या बोलते हैं, शिकारी को हंटर बने, कितने जीवों को मारा होगा। फिशरमैन बने, मछलियों, कितने मछलियों को मारा होगा। तो सभी की क्षमा याचना करते हैं। कभी हम ऐसे डाउट, जैसे आतंकवादी बने, गुंडे, और वहाँ कितने मनुष्यों को मारा होगा। ऐसे 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 विस्तार से, बहुत डिटेल से वर्णन आता है, और उनसे हनी जब भी जीव अभी वो जहाँ पर भी हो, उनसे यहाँ से हम क्षमा याचना करते हैं भगवान की साक्षी में, देव गुरु की साक्षी में। सुबह व्याख्यान में ये विषय चलता है अभी तो। हाँ, और वो उनको पश्चाताप बढ़ा, और उसने संकल्प किया कि अभी आज से मैं
एक भी जीव को मारूंगा नहीं। लेकिन फिर उसको ख्याल में आया कि मेरी भूल से भी अगर सूर्य के सामने मैं देख लूँगा कभी भूल से भी, और फिर मेरी आँख यहाँ जाएगी तो आग निकलेगी, कितने जीव मर जाए जल जाएंगे। तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, कोई भी जीव की हिंसा में मुझे निमित्त नहीं बनना है। तो फिर उसने क्या किया, अपना आगे क्या किया उसने, बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, तुमको जवाब देना है? अच्छा बोलो। हाँ, अपना मुंह कहाँ रखा? उसने अपना सिर एक गड्ढा बनाया, उसके अंदर अपना सिर डाल दिया जिससे वो किसी को देख नहीं पाएगा और मार नहीं पाएगा। वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? रियो थे। रियो। रियो। अच्छा, हाँ गड्ढा बनाया नहीं, पहले से वो गड्ढा तो होता है, सांप का बिल होता है ना जिसमें सांप रहता है, वो बिल था समझो। तो उसके अंदर अपना मुंह रख लिया, अपना बाकी का शरीर बाहर है, अपना केवल मुंह जो था वो उस बिल के अंदर, वो उसके डर के अंदर गड्ढे के अंदर रख दिया और शांत में रहा है। और इधर क्या हुआ, जो लोग पहले मना कर रहे थे भगवान को, दूर दूर से देख रहे हैं भला क्या होता है क्या होता है। फिर धीरे धीरे डरते डरते वो आगे आए, आगे आगे आते गए, और फिर जब देखा कि महर्षि ऐसे ही खड़े हैं, उनको कुछ नहीं साफ कर पाया और सांप भी अभी शांत हो गया है, तो धीरे धीरे लोग अपना भय जो उनको था, फियर, वो फियरलेस होते गए और लोग वहाँ से आने जाने लगे। और कोई कोई तो अभी नाग देवता को, ग्वालन लोग होती है ना, तो दूर से उसकी पूजा करते हैं। तो फिर उसके शरीर के ऊपर दूध की, मिल्क की गंध से क्या हुआ, जंगल में बड़ी बड़ी आंश, चींटियाँ होती हैं आंश, वो दूध की गंध के कारण उस सांप के शरीर के ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसको डंक लगाती है। तो उसके शरीर को डंक लगा लगा के, बड़ी बड़ी चींटियाँ होती है जंगल में, तो उसके शरीर को एकदम छलनी की तरह बींध दिया। फिर भी वो सांप जरा भी हिला डुला नहीं, सहन करता है। वो अपनी आत्मा को कहता है कि तुमने कितने जीवों को मार दिया है, ये मतलब शांत से रखे कि सब सहन कर लेना। अगर वो सांप जरा सा भी ऐसा अपने शरीर को हिलाता ना, तो भी कितनी चींटियाँ डर करके मर जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने चींटियों को भी बचाने के लिए एकदम वो उसकी भयंकर पेन होता था शरीर में, लेकिन क्षमता से शांति से सहन किया। कितना दिन तक? 15 दिन तक बिना खाए पिए उसी स्थिति में शांत मेडिटेशन कर रहा है। वो चंद्र कौशिक नाग भी मेडिटेशन करने लग गया, ध्यान करने लग गया, और भगवान महावीर भी 15 दिन तक वहीं पर खड़े रहे मेडिटेशन में, ताकि उनकी जो ऑरा सर्कल होती है ना, उनका प्रभाव होता है, कहीं ये बेचारा सांप वापस गुस्से में ना आ जाए, जीवों को मारे नहीं, इसके लिए और उनको उनकी समाधि, उनको शांति में उटका रहे। इसके लिए 15 दिन तक भगवान भी उसके पास में ही मेडिटेशन में खड़े रहे। और फिर वो 15 दिन के बाद उनकी आयु समाप्त हो गई, और फिर वो कहाँ उत्पन्न हुआ? चंद्र कौशिक नाग। कितनों को मालूम है? मालूम है? बोलो। देवगति में गया। कितना देवलोक बहुत है ऊपर, 26 टोटल, ऊपर 26 है वैमानिक देवलोक। उसमें से कौन से देवलोक में गया मालूम है? नहीं मालूम? सुनो, जो पशु पंछी वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 देवलोक हैं ऊपर, वैमानिक देवलोक, उसके ऊपर 9 ग्रहवेक हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। तो उसमें से 8वें देवलोक तक जा सकते हैं पशु पंछी भी, अगर कोई पूर्व जन्म की स्मृति होकर के एकदम शांत रहते हैं, तब करते हैं, तो फिर वो भी 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी तो साधु संत भी 4थे देवलोक तो भी जा सकते हैं। अब इस क्षेत्र में हमारा शरीर संज्ञान जो है कमज़ोर है, मन भी कमज़ोर है, इसलिए कितना भी मेडिटेशन या तब करेंगे फास्टिंग वगैरह, तो भी 4थे देवलोक तक जा सकते हैं। अगर पहला संगठन होता है वज्र ऋषभ नारद, मजबूत एकदम शरीर होता है उसमें, तो वो जो पशु पंछी भी ज़्यादा से ज़्यादा 8वें देवलोक तक जा सकते हो, जिसका नाम है सहस्रार। क्या नाम है? सहस्रार। हाँ, तो वो सहस्रार नाम के 8वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? हाँ, चंद्र कौशिक नाग, जिसने हजारों जीवों को मार दिया था, लेकिन उसका पश्चाताप किया। भूल से भी कोई पाप हो गया, उसको पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, और पश्चाताप के लिए क्या वर्ड है अंग्रेजी में?
सॉरी बोलना forgiveness, है वो फॉरगिवनेस यानी क्षमा रियलाइजिंग अपना अधिक करना कि मैंने पाप कर दिए, मेरे से पाप हो गए, उसका कबूल करना और उसके लिए क्षमा याचना करना, बेग योर पार्डन। ठीक, तो ये चंद्र कौशिक नाथ की कहानी, उसके पूर्व जन्मों की भी, उससे हमें क्या मोरल मिलता है कि जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा करेंगे तो भी सांप बनना पड़ेगा, बिच्छू बनना पड़ेगा, टाइगर या लायन बनना पड़ेगा, या मच्छर बन करके फिर काटेंगे। इधर काटने का, किसी को मारने का अगर वो संस्कार पड़ जाएगा तो अगले जन्म में या तो नरक में भी जा सकते हैं, अथवा फिर ऐसे बिच्छू, सांप और ये मच्छर, मॉस्किटो ऐसे ऐसे जन्म को मिलते हैं। फिर ये मनुष्य जन्म जल्दी जल्दी मिल नहीं पाता है। इसीलिए कोई कुछ कर ले, कुछ बोल ले तो भी गुस्सा नहीं, प्रेम से, शांति से हमको रहना चाहिए। ऑलवेज बी काम, नेवर बी एंग्री। अभी हमारी एक कहानी जो अधूरी है, कौन सी कहानी अधूरी है? भगवान महावीर स्वामी के जीवन के और भी प्रसंग है, वो आप पढ़ के लाना। अभी शनिवार को जब आप आएंगे तो पूरी वो किताब, अभी आपके पास 3 दिन तो है बड़े पूरे, और किताब में तो बड़े बड़े अक्षर में छोटे थोड़े से प्रसंग दिए हुए हैं। तो आपको वो महावीर स्वामी की किताब बराबर ध्यान से पढ़ करके आनी है। हर एक को जवाब आने चाहिए, खाली ये 2, 4, 5, 10 लोग जवाब देते हैं, बाकी के ऐसे बैठे रहे, वो नहीं चलेगा। सभी को आना चाहिए, बरोबर, सभी को जवाब देना है। और अगली बार से हम इनाम रखेंगे, जो कोई जवाब देता आएगा उसको हम तुरंत इनाम हमारे अंकल लेते आएंगे। हाँ, आज क्या देंगे? प्रभावना पेन देने वाले, जरा दिखाओ तो पेन से पेन दिलाओ। हाँ, अलग प्रकार की है, आपके लिए खास स्पेशल वो लाए हैं प्रभावना के लिए। चलो, तो हमारी कौन सी कहानी अधूरी है? कितनों को याद है? अगली बार जो कहानी कही थी अधूरी रह गई है। रोह की कहानी तो पूरी हो गई, उसके बाद नई कहानी सभी को आना चाहिए। तो इतने बच्चे लोग पीछे, हाँ, क्या उस लड़के का नाम था, इसकी कहानी हमारी अधूरी है, इसका मतलब तो ध्यान से नहीं सुनते हैं। हाँ, देखो आपको अभी, हाँ, कुसुमबेन रामिया कच्छ रामानिया गाँव, ये महालक्ष्मी रहते हैं, वो आपको ऐसी पेन देंगे, जरा बड़ी बाहर निकाल के बताओ उसको कैसे यूज़ करना है। ये क्या ऐसी का टावर? पेरिस का टावर है, ऐसी हाई पेन, लेकिन इधर उधर से लिखना है। हाँ, पेन ऐसी खड़ी आ जाती है ऐसे। ये पेरिस का टावर पूरा आपको प्रभावना के रूप में देंगे और आप ऐसे निकाल करके ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है? हाँ, ऐसे देखो, देख लो बरोबर, ये पेरिस का टावर। ओलंपिक भी पेरिस में हो रहा है। अभी ओलंपिक सब गेम चल रहा है, वर्ल्ड गेम जो, वो भी पेरिस में चल रहा है। अभी होने वाला, अगली बार होने वाला है। अभी कहाँ चल रहा है? अभी टोक्यो, जापान का जो मुख्य सिटी टोक्यो में भी चल रहा है ओलंपिक गेम। फिर 4 साल के बाद वो होगा पेरिस में, एंड इवनिंग इन पेरिस। तो ये आपको दिया जाएगा टावर। हाँ, अगले बार फिर और एक नई आइटम वो आपको मिलेगी। चलो, हाँ, सिट प्रॉपरली, ओ सिट प्रॉपरली, बराबर बाल्टी लगा करके बैठो, जैसे तैसे नहीं। इधर देखो, सीधा बैठो सभी। चलो, तो किसकी कहानी हमारी अधूरी है? नहीं आई थी अगली बार? बोलो, तुम तो आते हो हमेशा। वो 2 दिन में आए थे उस दिन। अच्छा, भले बोलो, कौन बोलेगा? पीछे से जवाब कौन देगा? किसकी कहानी? बोल। हाँ, बबू चक की कहानी तो कभी पूरी हो गई है, उसके बाद कितने दिन मिल गए? बोलो। हाँ, नहीं, थोड़ा नाम अलग है, बोलो। हाँ, शालीभद्र, किसकी कहानी? ये नाम सभी याद रखना। शालीभद्र की कहानी हमारी चालू है। शालीभद्र का जीव अगले जन्म में कौन था, उसका क्या नाम था? बस यही बोलेंगे।
तो आप लोगों का ध्यान कहाँ होता है जब ये पढ़ाया जाता है? तो बोलो। हाँ, क्वेश्चन ये है कि शालिभद्र का अगले जन्म में नाम क्या था? वो कौन था? कौन था? उसका नाम क्या था? बोलो। नहीं प्रियांक, वो तो आगे बैठते हो तो ध्यान से सुनो। ओ क्या नाम? वो आर्यन की इधर देखो, उधर क्यों देखते हो? बोलो। शालिभद्र का जीव अगले जन्म में कौन था और उसका नाम क्या था? अगले जन्म में उसने क्या अच्छा कार्य किया था? बोलो, क्या नाम था? संगम। क्या नाम था? संगम। उस किसका बेटा था? बोलो। शेफर्ड माने बरवार का ग्वाला। उसका पापा तो छोटी उम्र में उसको छोड़ करके मर गए थे। विधवा उसकी माँ तो ये दोनों ही थे। और उसने कौन सा अच्छा काम उसके जीवन में हुआ था? बोलो। हाँ, साधु भगवान, बड़े तपस्वी साधु भगवान 1-1 महीना का फास्टिंग करते थे, रात दिन मेडिटेशन में रहते थे और 1 महीने तो लगातार उनके दर्शन होते रहे जंगल में। ऐसे तपस्वी मुनिराज को उसने क्या भिक्षा में गुजरी में क्या हो रहा था? बोलो। खीर। तुममें से किसी ने खीर तो सबने खाई है ना कभी न कभी? ऐसे कोई है जिसने जिंदगी में कभी खीर नहीं खाई हो? खीर नहीं खाई हो ऐसे कितने हैं? ऐसे कोई भी नहीं है, सब ने खीर खाई है। उसका कलर कैसा लाल होता है कि पीला होता है? कि ऑरेंज, खीर का कलर लाल और रेड होता है, ऑरेंज होता है, पिंक होता है, येलो होता है, कैसा होता है? वो तो बोलो। वाइट। वाइट मिल्क से बनती है, मिल्क और राइस से बनती है, इसलिए मिल्क, राइस एंड शुगर तीनों वाइट हैं, इसलिए वाइट होती है। तो तपस्वी साधु भगवान को एकदम भाव से वो खीर हो रही, वो खीर भी रो करके उसको मिली थी। हाँ, वो तो गरीब थे, पड़ोस के लोगों ने उनको सब चावल वगैरह दिया था, दूध मिल्क वगैरह, और उससे खीर बनी थी। जिंदगी में पहली बार खीर मिली थी, फिर भी साधु महाराज ने तो भाव से सब वरा दिया। फिर माँ ने दूसरी खीर परोसी, खाया, रात को पेट में पीड़ा हुई, पेट हुआ, फिर उसकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन वो उसका चित्त पीड़ा पेन में नहीं था, वो खुश हो रहा था, हाँ मेरी जिंदगी सफल हो गई। ऐसे महात्मा तपस्वी, उनको मुझे ये खीर बनाने का लाभ मिला। कोई भी अच्छा कार्य करो ना, कोई छोटा सा भी अच्छा कार्य, उसके पीछे अनुमोदना करते, कहते हैं खुशी होना कि अच्छा मुझे लाभ मिल गया, हाँ मैं कितना भाग्यशाली, भगवान के दर्शन मिले मुझे, शिविर में मुझे ज्ञान मिला, ऐसे अनुमोदना करना चाहिए। तो वो पुण्य का मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, पुण्य बहुत बढ़ जाता है। हाँ, कभी किसी भिखारी को बेगर को दान दिया, कभी गाय को घास खिलाया, ऐसा कोई भी अच्छा कार्य करो ना, उसके पीछे बहुत खुश होना चाहिए। तो हमारा जो पुण्य होता है वो अनेक गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे इतना जबर खुश हुआ, इसके कारण से वो उसी जंगल में आयु समाप्त हो गई रात को, और फिर वो वहाँ से मर करके शालिभद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। शालिभद्र की माँ का नाम क्या था? व्हाट वाज हिज मदर्स नेम? बोलो। वेरी गुड, भद्रा सेठानी। एंड व्हाट वाज हिज फादर्स नेम? बोलो, फादर्स नेम बोलो। हाँ हाँ बोलो, क्या? गोभद्र, रो नहीं, गोभद्र। गोभद्र से क्या नाम था? सभी बोलो, क्या नाम था? और माता का नाम? भद्रा सेठानी। भद्रा सेठानी। और उनका रहने के लिए झोपड़ी थी या कैसा मकान था? कैसा था? कोई महल था, 33 कितने मंजिल के महल था वो? हाउ मेनी फ्लोर्स वर देयर? 7 फ्लोर्स। 7 मंजिल का बड़ी हवेली, बड़ा महल था। और जब वो जवान हुआ, उसकी शादी हुई, तो उनकी हाउ मेनी वाइफ्स ही हैड? बोलो बोलो, कोई तुम जल्दी बोलो, अभी हाथ तो ऊंचा किया तो बोलो। 4 32 ये 32 वाइफ्स। और उसके पिता क्या बने थे? फिर बढ़ करके देव बने थे। वो हर रोज देवलोक में से कितने बॉक्स भेजते थे? 99।
उसके 3 विभाग थे। 33 पहले जो 33 बॉक्स थे उसमें क्या होता था? देवताई खाना, भोजन, हेवनली फूड। और दूसरी जो 33 पेटियाँ उसमें क्या होता था? कैसे हेवनली क्लोथ्स, स्वर्ग के देवलोक के वस्त्र होते थे। और तीसरी जो 33 पेटियाँ उसमें क्या होता था? ज्वेलरी, एकदम बड़े बड़े महंगे रत्न हीरे की ज्वेलरी होती थी। वो रोज सालीभद्र और इसकी 32 पत्नियाँ, मतलब 33 हो गया। वो सब नया भोजन, अच्छा नए कपड़े रोज हर रोज स्नान करके वो बाथरूम में रख लेते थे। उनके नौकर चाकर नौकरियाँ वो सब ले जाते थे रोज। हाँ, और वो गहने भी, ज्वेलरी भी वो एक दिन पहना, रख दिया बाथरूम में, उसके नौकर चाकर ले जाते थे। कितना पुण्य देखो, महाराज साहब को, तपस्वी महाराज साहब को भाव से खीर हो रहा है ना, इसका ये पुण्य प्रभाव देखो। देवलोक से रोज 99 पेटियाँ आती थी। हाँ, और एक बार ऐसा हुआ कि आगे यहाँ तक कहानी हुई थी ना, अभी कहानी आगे बढ़ती है, सुनो ध्यान से बराबर। हाँ, स्पीक केयरफुली, लिसन केयरफुली। हाँ, everybody give your attention here, attention. Give your attention here carefully, listen carefully. एक दिन ऐसा हुआ, नेपाल देश में, नेपाल के भारत के पास में ही पड़ोस में देश है, वहाँ से 2 व्यापारी मर्चेंट, उनके पास क्या था मालूम है? क्या था? हाँ, ब्लैंकेट थे, रत्न कंबल, बड़े कीमती, टू मच प्रेशियस। और वो ऐसे थे ना, सर्दी की ऋतु में, विंटर में उनको पहनो ना तो ठंड बिल्कुल नहीं लगे, और गर्मी की सीजन में पहनो तो गर्मी बिल्कुल नहीं, पसीना बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ऐसा था, पसीना होता है ना, वो नहीं होता है। वो रत्न कंबल ओढ़ते हैं, और इन द मानसून अगर उनको ओढ़ लेते हैं, जैसे रेन कोट ओढ़ते हैं तो बिकते नहीं है ना, ऐसा उसका गुण थे। उनके पास 16 रत्न कंबल थे, बड़े प्रेशियस, एक की कीमत 1.25 लाख सोना रुपये नहीं, सुवर्ण मुद्राएं, कॉइन्स ऑफ गोल्डन कॉइन्स, 1.25 लाख वो उसका कीमत था। तो उन्होंने सुना कि राजगृही नगरी कौन सी थी? राजगृही, इंडिया में, भारत में राजगृही नगरी है। उस वक्त नेपाल भी तो भारत का ही हिस्सा था, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। तो वो व्यापारी बहुत दूर से चलते राजगृही नगरी में आए हैं अपनी वो 16 रत्न कंबल बेचने के लिए। उन्होंने सुना था कि राजगृही का राजा सैनिक महाराजा बड़े धनाढ्य भी हैं, रिच, वेरी रिच, और बहुत उदार भी है, तो वो हमारी ये रत्न कंबल खरीद सकेंगे। बाकी और दूसरे लोगों को तो ताकत नहीं है इतनी कीमती, इतने प्रेशियस रत्न कंबल खरीदने की। तो इसीलिए वो चलते बड़े परिश्रम से कितने दिनों के बाद राजगृही नगरी में आए, राजा के पास आए, राजा को सलाम किया और कहा कि हम नेपाल से आ रहे हैं, हमारे पास ये रत्न कंबल है, अगर आप इसको खरीदे तो आपकी मेहरबानी होगी। और राजा की बहुत रानियाँ, उसमें मुख्य रानी कौन थी? चेल्लना, क्या नाम थी? चेल्लना, लड़की भी आई थी उस नाम की 2 दिन पहले, तो सुबह आई थी व्याख्यान में। तुम लोग थोड़े कौन थे सुबह के व्याख्यान में 2 दिन पहले? तो 2 लड़कियाँ, 2 बहनें आई थी, 2 सिस्टर, दोनों का क्या नाम था? एक का नाम तुम नहीं थे, एक का छोटी चेल्लना, बड़ी का नाम आए थे उस वक्त, आए थे सुलसा, उसकी भी अच्छी कहानी है, आपको फिर कभी कहेंगे, सुलसा शायरी का। तो ये 2 बहनें आई थी छोटी, हाँ, सुलसा और चेल्लना, और वो आँख में काली पट्टी बांध करके आसानी से तुरंत बता देती थी कि क्या अक्षर की लिखी है, क्या चित्र है, कैसे कलर का है, फटाफट बता देती थी। तो हाँ, तो चेल्लना महारानी, मेन क्या रानी को क्या बोलेंगे? मेन क्वीन। तो उसको रत्न कंबल बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपने पति को, हस्बैंड को, सैनिक महाराजा को कहा कि हमको ये रत्न कंबल दिला दो, खरीद दो। राजा ने उनका प्राइस पूछा, प्राइस क्या है? तो उन्होंने कहा राजा 1.25 लाख कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स। ये इसकी कीमत सुनकर राजा भी हिम्मत नहीं हुई इसको खरीदने की, परचेस करने की। राजा ने कहा इतना कीमती वो हम लोग नहीं लेते, लोगों का पैसा टैक्स लोग देते हैं, प्रजा हमारी, तो उसको ऐसे बहुत शौक में उसका दुरुपयोग मिसयूज नहीं करेंगे। वो तो राज्य की रक्षा के लिए सब पैसे हैं, उसको अपने
व्यक्तिगत महोत्सव, पर्सनल महोत्सव के लिए इसका उपयोग हम नहीं करना चाहिए हमें। तो रानी को समझाया और ना किया, नहीं ऐसी कीमती हम नहीं खरीदेंगे। और फिर वो जो मर्चेंट आए थे ना, वो बड़े निराश हो गए, अरे राजा ऐसा किंग नहीं, एक भी रत्न कंबल नहीं परचेज किया, तो हमारे पास 16 रत्न कंबल हैं और कौन खरीदेगा। इसलिए बड़े वो निराश हो गए हैं और आपस में बातें करते करते वो जाते हैं। तो वो जो शालीभद्र का 7 मंजिल का जो महल हवेली थी ना, उसके पास से वो गुजरते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे अपन ने क्या सुना था, राजगीर नगरी में बड़े बड़े श्रीमंत हैं, राजा भी बड़ा उदार है, लेकिन राजा ने एक भी कंबल नहीं खरीदी, तो दूसरा तो कौन खरीदेगा, अरे रे अपना तो ये धक्का फैल गया। ऐसे बात कर रहे थे। तो वो भद्रा सेठानी ने सुन लिया, तो तुरंत उन्होंने अपनी दासी को भेजा, जाओ उन व्यापारी लोग बच्चे को यहाँ बुला के लाओ। तो दासी गई और बुला लाई। तो भद्रा सेठानी उन्होंने पूछा कि बोलो तुम्हारे पास क्या चीज़ है बेचने के लिए। उन्होंने कहा हमारे पास तो रत्न कंबल है, बड़े कीमती है। अच्छा कितने हैं? हमको तो 32 चाहिए। है तुम्हारे पास 32? अरे माझी पहले सुनो तो सही, देखो तो सही, सीधे 32 की बात करते हैं। एक भी खरीदो तो बहुत है। राजा जैसा मगध सम्राट स्वर्णिम महाराजा भी एक रत्न कंबल परचेस नहीं कर पाया, तो आप 32 की बात करें, पहले इसकी कीमत तो पूछो हमको। कीमत जो हो सो बोलो, क्या कीमत है? 1.25 लाख सोना मुहर। कोई बात नहीं, 1.25 का 1.5 दे देंगे, 2 देंगे, क्योंकि हमको पूरे 32 चाहिए। उनके पैसे की कमी नहीं थी, अरबों खरबों रुपये उनके पास, देवलोक से इतना आता था सब। इसलिए हाँ बोलो कितना? 32 हो तो बोलो। 32 तो नहीं है, क्या करें, हमारे पास 16 है। ठीक है चलो 16 दे दो, मेरी तो 32 बहू हैं, उन सभी को मुझे देना है। हाँ 16 को देंगे, 16 को नहीं दे पाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे ना। देना है तो सबको, आपको किसी को प्रभाव ना मिले, आधे को नहीं मिले, तो दूसरी बार आएंगे शिविर में, और वहाँ को उनको कुछ नहीं मिला, दूसरों को मिला, ऐसा होता है ना। तो इसलिए 32 चाहिए, लेकिन 16 थी। तो आखिर उसने क्या किया? हाँ 2 टुकड़े कर दिए। तो कंबल कितना प्रेशियस, उनके 2 टुकड़े करके 16 32 इज इक्वल टू 32। वो व्यापारी लोग तो मुंह में उंगली डाल दो, अरे वाह ये क्या हम देख रहे हैं, ये स्वप्न है कि सत्य है, ये कैसी। और तुरंत उसने पैसे मंगाए, नौकरों को कहा जाओ ले आओ 32 अपना क्या जो उसकी जो कीमत थी वो सब बड़े बड़े सोना अंगूरों के थैले भर करके वो लाए और सीधा उनको व्यापारियों को दे दिया, गिन लो ये आपके, एक भी कम हो तो बोलो, ज़्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, ऐसे बिना गिने दे दिया, इतना ऐसे ला। तो और 2 टुकड़े उनके आंखों के सामने ही कर दिए। वो दिक्कत तो व्यापारी भी चकित हो गए, ओ उनको हुआ हमारा ये आना या सक्सेसफुल हुआ, चलो भले आए। राजगुरी नगरी में ऐसे ऐसे श्रीमंत लोग भी रहते हैं जो राजा भले एक न खरीद पाया, लेकिन राजा की प्रजा में से ऐसे श्रीमंत भी हैं जिन्होंने 16 की 16 एक साथ खरीद ली और नजर के सामने में 2 टुकड़े कर दिए अपने 32 बहुओं के लिए। वाह वेरी गुड, ऐसे उसकी प्रशंसा करने लगे, दे वर प्रेजिंग नाउ। तो वो खुश होकर चले गए और उधर भद्रा सेठानी क्या किया, अपनी 32 बहुओं थी सबको एक एक टुकड़ा रत्न कंबल का दे दिया। और उन्होंने क्या किया, सुबह स्नान करने के बाद उसने ऐसे पैर को ऐसे किया, फिर हाँ अपने पैर को पहुँच कर स्नान करने के बाद वहाँ हाथ पैर को जरा ऐसे पहुँच करके वो रत्न कंबल को डाल दिया बाथरूम में, और जो नौकरानी वगैरह थी वो आकर के ले गई। उसमें से एक नौकरानी जी थी, वो राजमहल में भी काम करती थी, इधर भी काम करती थी, राजमहल में काम करती थी। तो वो रत्न कंबल ओढ़ करके राजमहल में गई है। तो चिल्लना रानी, नाम क्या है मुख्य रानी का? चिल्लना। उसने देखा, अरे तुम जैसी गरीब आदमी के पास ऐसी कीमती रत्न कंबल कहाँ से, क्या तुमने चोरी की कहीं से? नहीं नहीं चोरी क्यों करूँगी मैं तो वहाँ काम करती हूँ शालीभद्र भद्रा सेठानी के वहाँ, और वहाँ पर पैसा होता है, रोज देवलोक से भी गहने वगैरह आते हैं, और तो रोज स्नान करके
बाथरूम में डाल देते हैं और हम सब नौकर चाकर ले लेते हैं। अच्छा, तो चिलना रानी ने अपने हस्बैंड सैनिक महाराजा को कहा, देखो देखो, हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, सभी खरीद लिए 16-16 और दो टुकड़े कर लिए। तुमने तो राजा होते हुए एक टुकड़ा भी मुझे, एक भी रत्न कंबल नहीं लिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। नाराज हो गई रानी। तो राजा को हुआ, अरे ऐसी बात है, मेरे राज्य में ऐसे श्रीमन रिच मैन भी रहते हैं, ओह तो मुझे उससे मिलना चाहिए। हाँ, तो उसका एड्रेस लेकर के खुद राजा, अगर वो राजा चाहता तो सिपाही को भेजता, उनको बुला लेता, लेकिन खुद राजा उनकी 7 मंजिल की हवेली वगैरह देखने के लिए वो आते हैं। तो शालिभद्र का नाम भी सुना, तो शालिभद्र को मिलने के लिए आते हैं। तो अचानक वो राजा आ गए उसके हवेली में। भद्रा सेठानी तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, उसका बड़ा स्वागत किया, वेलकम। और फिर कहा, राजन, हाँ इसमें बड़े राजा, हमारे जैसे आदमी का कुछ काम पड़ा होता, हमको ऑर्डर भेज के हम आ जाते, आपने यहाँ आने की तकलीफ ली, फिर भी खुशी है हमको कि हमारा घर आपने पावन किया, यहाँ पधार करके। राजा ने कहा, ठीक तो ठीक है, मैंने आपके बेटे का नाम सुना है शालिभद्र का, वो जरा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। राजन, वो तो 7वीं मंजिल पे होगा, अपनी 32 पत्नियों के साथ होगा। और सीधा नीचे से जोर से शाउटिंग किया, बुलाया, बेटा शालिभद्र का नाम तो माँ तो शॉर्ट से बोला, साली ही बोलती है, बेटा साली, ए जल्दी नीचे आओ, देखो सैनिक आए हैं मिलने के लिए। और वो शालिभद्र को सैनिक राजा का नाम भी पता नहीं होता। आप कैसे ऐसे कोई है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं जानते हो? सभी जानते हैं ना। मैं किसी को भी पूछूं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ, बाकी के बच्चे नहीं जानते प्राइम मिनिस्टर का नाम। बीच में ये बच्चे बैठे हैं, सुनते हैं सभी भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम, बोल। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नमो। नरेंद्र का न और मोदी का मो, नमो अरिहंताणम, है ना, नमो, तो नमो बोलते हैं। वो जब छोटे थे तब वो क्या करते थे, क्या बेचते थे, चाय टी। चाय बेचने वाला देखो भाग्य और पुरुषार्थ से, मेहनत से भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज कितने सालों तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया। हाँ, तो आप भी बड़े होकर के ऐसे महान बनना। हाँ, हो सके तो साधु महाराज, वो राजा, और ये भाई महाराजा। साधु भगवान को महाराज साहिब बोलते हैं ना। हाँ, तुम्हारा जीवन में बनने हो सको तो महाराज साहिब बनने का भाव रखना, और कभी नहीं बन पाए तो फिर बड़े अच्छे ऐसे वस्तुपाल, तेजपाल, बड़े दानवीर हो गए, कुमारपाल, ऐसे अच्छे दानवीर वगैरह बनना, अच्छे श्रावक और श्राविका बनना। तो क्या हुआ कि राजा तो बुलाया शालिभद्र को, तो ऊपर से जवाब देता है कि सैनिक आए हैं तो उसको अपने गोडाउन में डाल दो। वो सैनिक क्या है उसको पता नहीं है कि हमारे किंग हैं। वो समझते कि कोई व्यापार, वो जहाँ जाते थे कितने माल भर करके, तो कोई ऐसे अनाज का नाम होगा, वन काइंड ऑफ ग्रेन। तो उसने कह दिया कि सैनिक आया तो डाल लो गोडाउन में। अरे बेटा, ये तो हमारे महाराज, हमारे नाथ है। नाथ माने मालिक, राजा को मालिक कहा जाता है। नाथ, जल्दी नीचे आओ। अच्छा, नाथ, हमारे ऊपर भी कोई नाथ है? वो तो समझता था मेरे से ऊपर कहीं नहीं होगा, मैं 7वीं मंजिल में रहता हूँ, मुझे कुछ व्यापार नहीं करना पड़ता है। अरे जलसा, तो फिर तो मुझसे तो बड़ा कोई नहीं होगा। और मेरी माँ कहती है कि हमारे नाथ आए, हमसे बड़े मालिक हमारे आए। तो वो चिंतन में चढ़ गया, अरे मेरे पुण्य में कुछ कमी है अभी भी। हाँ, कि हमारे ऊपर भी कोई नाथ है, कोई ऊपरी है। हाँ, और हम उनकी प्रजा के रूप में हैं। ओ चिंतन करने लग गया। बोलो, आया नीचे तो आया, और इतना सुकोमल उनकी शरीर था, इतना रूपवान था वो। राजा उसको भेंट पड़े प्रेम से,
तो जैसे भैंस है ना, वो कोमल शरीर था उसका, पसीना पसीना होने लगा गर्मी के कारण उसको। तो भद्रा सेठानी का राजन, मेरे स्वामी को अभी छोड़ दिए, बेचारे को पसीना हो रहा है, हाँ छोड़ दीजिए। फिर राजा ने छोड़ दिया, वो तो दौड़ता हुआ ऊपर चला गया वापिस। लेकिन अभी भीतर में विचार थिंकिंग चालू हो गया, अरे मैंने पुण्य में कुछ मेरी कमी है, हाँ कि मुझे मेरे ऊपर कोई ऊपरी है, नाथ है, अब मैं ऐसा पुण्य करूँ, ऐसा पुण्य करूँ, सबसे ऊपर हो जाओ, मेरे से ऊपर कोई ना हो। ऐसे कौन है? ऐसे सिद्ध परमात्मा सबसे ऊपर सिद्ध शिला पर रहते हैं, हमेशा के लिए आनंद आनंद परम आनंद में रहते हैं। और वो बनना है तो भगवान महावीर स्वामी जो गिरिचरित है उनके पास दीक्षा लेंगे और ऐसे तप करेंगे, ऐसे मेडिटेशन करेंगे तो हम भी सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। फिर कभी जन्म ही नहीं लेना पड़े, फिर कभी मौत भी नहीं आ सकती है। तो ऐसा उन्होंने सोचा। और फिर हाँ, व्हाट यू वांट टू आस्क आदर्श? हाँ, अभी एकदम दिखाना जरूरी है एकदम। ये आधे घंटे से रोके बैठा। ऐसे क्यों करते हो? तो ये रख के कैसे, उसको क्या होगा? फिर बारी बारी से जाओ, चलो। अभी अगली बार ख्याल रखना, पहले से शिविर में आओ ना। इतने दिन कोई भी नहीं उठता था, आज ही क्यों ऐसे उठने लग गए? देखो बकरी होती है ना, गॉड सी गॉड, एक बकरी बैं करती है तो पीछे चले सारी बकरियां बैं करती हैं। ऐसा है, एक गया दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लास में बीच में से जाते हैं, स्कूल में क्या नहीं जाते हैं, बीच में से नहीं जाना चाहिए, पहले से सब ये निपटा करके आने। देखो हम तो बोलते हैं तो हमको प्यास नहीं लगती होगी, सुबह व्याख्यान दिया अभी फिर भी बोलते हैं ना बिना उठे। तो सब तो छोटे बच्चे हो तो सब पहले से वो निपटा करके आना चाहिए। बीच में से आज भले जाओ लेकिन फिर 5 मिनट ऊपर पीछे खड़ा रह के सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक शॉप में नहीं जाना, पहले आ जाए फिर तुम जाना। हाँ, अगली बार सभी को ख्याल रखना है, बीच में से किसी को परमिशन नहीं मिलेगी, पहले से सब निपटा करके आना है। तो क्या हुआ कि हाँ, वो राजा, हाँ अचानक राजा की अंगूठी गिर गई। पानी का बड़ा हौज था उसमें वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, है जमीन लेकिन अपने को दिखता है पानी है, और कभी पानी होता है तो अपने को दिखता है जमीन है। ऐसा आपने किसी स्टोरी में देखा है, पिक्चर में, टीवी सीरियल में, महाभारत की टीवी सीरियल में, जब वो दुर्योधन जाता है ना द्रौपदी के वहाँ हो महल में, तो वहाँ ऐसा था ना। हाँ, फिर वो उसको लगता है जमीन है तो कपड़े भीग गए, पानी था वहाँ, फिर जहाँ पानी था वो जमीन समझ जाएगा, जमीन को पानी समझ जाएगा। फिर वो द्रौपदी ने क्या बोला, अंधे के बेटे, अंधे ब्लाइंड के सन, अंधे ब्लाइंड होते हैं। फिर उसको गुस्सा आया और महाभारत का युद्ध हुआ आगे चल करके। तो वहाँ भी ऐसा था। तो बड़ी कीमती प्रेशियस रिंग बेटी थी, वो गिर गई उसको पानी के हौज में। तो उसके बदले में इससे भी कई गुनी ज़्यादा कीमती कितनी सारी रिंग्स आ करके उसका थाल बड़ा भर करके भद्रा सेठानी ने राजा को भेंट दिया। वो देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए, ओह इतने पैसे, इतने सब है इनके पास। तो राजा भी बड़ा खुश हुआ। आजकल की सरकार होती है ना, उसको ख्याल में आता है इनके में इतने पैसे हैं तो किसी न किसी रूप में उनको धमकी दे करके लाश पैसे जुटा लेते हैं, कर टैक्स वगैरह लगा करके, इनकम टैक्स वगैरह के लिए। लेकिन राजा पहले की बहुत दयालु थे, उदार थे, उन्होंने ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं किया। फिर देखो आगे कहानी आगे है, बहुत ध्यान से सुनो बरोबर। फिर क्या हुआ, उसने निश्चय कर लिया कि अभी मुझे दीक्षा लेनी है, साधु बनना है, तप करना है, मेडिटेशन करना है, कौशक करना है, और ऐसी साधना करो कि मैं भगवान बन जाऊं, फिर मेरे ऊपर कोई नाथ न रहे। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी पत्नियों को भी बात की और अपनी माँ को भी कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। सोचो कितना 7 मंजिल की हवेली, 32 पत्नियाँ, कितने पैसे गहने, ये सब। फिर भी उनको ख्याल में आ गया इसमें सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो भीतर में, पैसे से वो नहीं मिलता है, सोने से वो नहीं मिलता है, वो साधना से मिलता है, मेडिटेशन से मिलता है, फास्टिंग वगैरह करने से मिलता है।
इसलिए अपनी वाइफ और अपनी जो मदर थी उनको बोला कि अभी मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे इजाज़त लो, मुझे परमिशन लो, मुझे ब्लेसिंग आशीर्वाद दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। आपको कभी विचार आया महाराज साहब को छोटे महाराज दूसरे 4 महाराज को लेकर के कभी मन में दिमाग में ऐसा विचार आया किसी को कि अगर मैं भी आगे बढ़ चल करके मैं भी साधु बनूँ? कितने को अभी होता है भाव साधु बनने का? देखो महाराज ऊपर बैठते हैं, आपको नीचे बैठना होता है। महाराज साहब बनोगे तो तुमको यहाँ बैठने मिलेगा। और लोग वंदन करते हैं, फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको इचामी खमासनो करके वंदन करेंगे। हाँ, और सब भगवान ने क्या कहा है हमारी आत्मा के लिए, वो सब शास्त्र ग्रंथ सूत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऐसे है। हाँ, तो ये भाव करना चाहिए, भगवान हमको ऐसी भावना जगाओ कि हम भी बड़े होकर के बड़े साधु या साध्वी जी बने। कम से कम 8 साल की उम्र होती है ना, तब से दीक्षा ले सकते हैं। देखो इसको भी 10-11 साल चल रहा है, 10 और हाफ 10 and half, and he will become monk after this chaturmas, and after some months he will become monk with his father also, father, mother and sister, whole family. He will become monk and nun. आपको भी ऐसे मनोरथ करने चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, व्यापारी बनूं, ऐसे ऐसे मनोरथ होते होंगे, लेकिन उससे भी सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो वो बनने के लिए कितने पाप करने पड़ते हैं आजकल, कितना झूठ बोलता पड़ता होता है, कितना लाज लेना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, कितने वो बड़े बड़े सूखे पढ़ने पड़ते हैं। तब मुश्किल से जाकर के कोई सीए बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। लेकिन महाराज साहब बनने से तो कितना कोई पाप नहीं, जिंदगी में कोई पाप नहीं करने का, छोटा या बड़ा कोई पाप नहीं करना पड़ता है। ऐसा निर्दोष निष्पाप पवित्र जीवन प्योर लाइफ होता है। तो ये मनुष्य जन्म हमको मिला है जैन शासन में, तो हमें बातें मत करो। चलो ऐसे खड़े हो जाओ, तो पीछे बैठो, खड़े हो जाओ, पीछे बैठ जाओ। नहीं, खड़े हो जाओ, पूरा खड़े हो जाओ। तुम नहीं, तुम बैठ रहो, तुम चले जाओ पीछे, थोड़ा पीछे, एकदम लास्ट में चले जाओ। वहाँ भी सीधे बैठना, गड़बड़ मत करना। देखो अभी तुम बात करने लग गए, ध्यान से सुनो, बरोबर टेंशन लेकर के यहाँ। हाँ, तो क्या बात चल रही थी अपनी? देखो बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो फिर वो लिंक रुक जाती है। इसलिए ख्याल रखो, बीच में बराबर जरा भी बात मत करो, इधर पूरा ध्यान दे करके सुनो। अपनी बात क्या थी अभी? हाँ, अपनी माँ और पत्नियों को कहा मुझे दीक्षा लेनी है। टाइम तो पूरा हो गया, 5:15 बज गए। देखो टाइम कहाँ कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अब वो आगे क्या होता है, उसकी माँ और पत्नियाँ बत्तीस थोड़ी जल्दी इजाज़त दे देंगे, परमिशन दे देंगे। फिर आगे आगे क्या होता है, जिसकी इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है, वो सारी बातें। और फिर उसके पूर्व जन्म संगम वाला था ना, उससे भी पूर्व में ये शालिग्राम जी और उसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। तो वो सब बातें अभी हम सैटरडे बराबर, आज ट्यूसडे है, सैटरडे को फिर 3:45-4 बजे के बीच में, 4 बजे से पहले आ जाओ। आधे बच्चे आ जाते हैं, आधे बच्चे करीब करीब वो 4 बजे के बाद में आते हैं। अगर क्लास हो तो अलग बात है, आपको क्लास लेट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो तो जरा टाइम से आ जाओ बराबर 4 बजे से पहले, और पूरा गुरुवंदन करके मांगलिक सुन करके फिर ये शिविर का प्रवचन सुनोगे तो बहुत बहुत लाभ होगा। हाँ, क्या पूछना है? अभी टाइम हो गया है। हाँ बोलो। ये एकासना किया तुमने आज? अच्छा देखो, इस बच्चे ने आज एकासना किया है। हाँ, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अच्छा देखो, हमने जो दिन के बात कही थी ना व्यासना करने की, कितने ऐसे स्टार्ट कर दिया हमने भी। वेरी गुड, 1 2 3 तुम भी करोगे ना आगे व्यासना। आगे प्रश्न कर लिया, व्यासना करने का। हाँ धन्यवाद, तुमने लिख दिया व्यासना का, अभी करोगी आज पर से कर देना।
70 दीपावली का अरे 70 यात्रा आ जाएंगे तो फिर आपको कौन सी तीर्थ की यात्रा कराई जाएगी? गिरनार महादेव का बहुत बड़ा पहाड़ है, जो चलने की सीढ़ियां हैं, और देवीनाथ भगवान बुद्धनाथ इतने सारे मंदिर बहुत बहुत देखने जैसा है। तो इसलिए हम 70 व्यासना करने का जरूर भाव रखना, और जिनको भी भाव हो वो अपने नाम इधर अंकल के पास लिखा देना, वीरेंद्र अंकल के पास नाम लिखा देना। हाँ जरूर, और भी बच्चे कम से कम चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में, तो मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना साथ में जाएंगे, साथ में आपके साथ कार्यकर्ता लोग भी चलेंगे, आप अकेले चिंता नहीं करना। हाँ, अगर आपकी मम्मी को भी चलना है तो फिर वो उसके लिए उसकी टिकट की व्यवस्था उसको खुद को करनी होगी, चल सकेगी लेकिन उसकी टिकट के पैसे खुद के लिए करने होंगे। लेकिन आपको तो बिना पैसे से ये यात्रा कराई जाएगी। कितने बच्चे करेंगे व्यासना? हाँ, तुम भी करोगे व्यासना? एक दिन में 70 दिन आगे छोटी बच्ची जो आप अच्छा किया है व्यासना करोगे। 2 टाइम खाने का, रात को नहीं खाने का, रात को कुछ पानी भी नहीं पीने का, और दिन को भी उबाला हुआ पानी ठार करके पीने का होता है। चलो धन्यवाद, सभी अपने नाम लिखा देना। कुछ है ना? हाँ देखो, ये पीयूष अंकल आपको कुछ बात करना चाहते हैं, बराबर ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य गुरुदेव महोदय सागर कोटि कोटि वंदन। अभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी गुरुदेव व्याख्यान देते हैं, समझाते हैं, कहानी कहते हैं, तो किसको भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का, आजू बाजू खेलने का नहीं, हाथ पैर हिलाने का नहीं, पूरा ध्यान से जो गुरुदेव वचन से समझाते हैं, कहानी कहते हैं, वो आपको बराबर ध्यान से सुनने का। और जो बच्चा, छोटे बच्चे, बेटियां, लड़कियां अगर उसमें ध्यान नहीं देंगी तो उनको प्रभावना हम नहीं देंगे। तो आज मैं 3 लोगों को प्रभावना नहीं देने वाला हूँ, बाकी सबको दूंगा। किसको प्रभावना होना, हाथ ऊंचा करो। किसको एफिल टावर का पेन होना, हाथ ऊंचा करो। सबको होना। अभी काफी लोग यहाँ पे नहीं थे। एक तो मेरा पोता आर्यन, तुम्हारा भी ध्यान नहीं था, तो तुम्हारा एक होना या नहीं होना? होना। तो फिर यहाँ पे सुनने का, खिड़की के बाहर नहीं देखने का, पीछे नहीं देखने का। ओके, भविष्य में ऐसा गलती नहीं हो गए। और बेटिया तुम लोग भी, आपको भी नहीं करने का, पीछे भी नहीं करने का, किसको भी नहीं करने का। आज सबको मिलेगा।